Good morning, student. This is Rajesh, and I am going to teach you SST. Dear student, SST has been divided into three parts: history, geography, and civics. So, in this today we start geography, chapter 1, environment. So, what we are discussing in this chapter? Later we discuss. But I am going to tell you this concept in environment. First you know what chapters are coming here. First term and what chapter are coming the second terms. Either in history, geography and civics. So first of all, I write here on the blackboard. You need to note it, and by this way you prepare your lesson. So, what is the geography part which we start today first lesson? So, geography part is first term. Today I will discuss only first term chapters. The chapter number 1, that is the environment. Second chapter. We are inside our earth. Actually, total chapter is 10. Out of 10, we divide 5 chapters on the first term and the next 5 chapters in the second term. So, inside our earth, that is the second part. Third chapter in geography is our changing earth. The third is our changing earth. ये हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म में. फिर हम देख रहे हैं तीन जो है हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टर्म में 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने पहला ज्योग्राफी का देखना है. फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज द इनसाइड आवर एंड थर्ड इज द आवर चेंजिंग अर्थ. एंड द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 इन फर्स्ट टर्म एयर एंड नंबर 5 वाटर. This all 5 chapters we're discussing the first term. Out of this, the first 2 chapters, I mean environment and inside our earth, coming your first periodic terms. So according to this schedule, you need to prepare your chapter, and we are going to teach you with our schedule. Okay? So I hope you will write here. If you like, pause your video, write down, then move to the next. Now we are going to the history part. In history there are also 5 chapters. Total 10 chapters in history. First 5 chapters coming in your first term, and the next 5 chapters coming in the second term. So in history, which lesson were discussed in the first term? We are going to right here. The number one, pressing changes. Pressing changes and 1000 IRs. The second chapter जो सेकेंड हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. न्यू किंग्स एंड किंगडम. जो नेक्स्ट चैप्टर हम थर्ड चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में हम डिस्कस करेंगे वो है द दिल्ली सुल्तान. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये.
अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको ये प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है द मुगल एम्पायर, एंड द लास्ट वन चैप्टर 5 जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रूलर्स एंड ग्रेडियंट्स। ओके, सो these 5 chapters in history come in your first term exams. Out of this, chapter first and second, pressing changes in 1000 years ago, and the new king and kingdom come in your first periodic test. So you need to be attentive here in this chapter, and according to our schedule we discuss these chapters. So I hope you will also write this one in your notebook. Now we are going to the next syllabus, next topic, that is the civics. अब हम civics में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसको देखें। इसमें भी फर्स्ट टर्म, there are total 10 chapter, first 5 chapter coming in the first periodic first term, and the second one, last one, last 5 one and coming in the second term. So what chapters are coming in your first term in civics? That is the on equality. हमें ये देखना है, इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट टर्म में, दैट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ये हम सेकंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म ये सेकंड चैप्टर। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे हाउ टू स्टेट गवर्नमेंट वर्क, हाउ टू स्टेट गवर्नमेंट वर्क, स्टेट गवर्नमेंट कैसे गाइड करती है, क्या इसके पास राइट है, कैसे चीजों को देखती है, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 फर्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे वो हम कहेंगे ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स, कि किस तरह हम बॉयज या गर्ल्स में ग्रो करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। एंड लास्ट में जो हम फर्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे वो हमारा है वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड, कि वुमेन कैसे एक वर्ड को चेंज करने के लिए क्या रूल्स लाती हैं, क्या उनके रूल हो जाते हैं, क्या मेजर चेंजेस आते हैं लाइफ ऑफ वुमेन। इसमें हम इंक्लूडिंग विडो भी कर लेंगे, गर्ल्स एजुकेशन को भी देखेंगे। तो वुमेन चेंज द वर्ल्ड इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, this is your syllabus in the first term examination, and the next 5 chapters है either geography, history or civics, ये हम next topic में डिस्कस करेंगे। So इसी क्लू में हम देख रहे हैं तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट। नाउ अब फोकस करें आप अपने कॉन्सेप्ट और आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं जो है इन्वायरमेंट। मैंने कुछ डेफिनेशंस इन्वायरमेंट के यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं और नोट कर दूं कि आपको क्लियर हो गया। क्या है एनवायरमेंट? जब भी हम एनवायरमेंट की बात सुनते हैं या करते हैं तो पहले हमें ये सोचना इन्वायरमेंट है क्या। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को आगे ले चलूं, आगे हम इसमें डिस्कस करें,
सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे ही हम पकड़ के रखेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे क्यों। फर्स्ट आस्क योर क्वेश्चन। आपको बहुत सारे आंसर जो होंगे वो बहुत सारे आपको चीजों को क्लियर कर देंगे। तो हम पहले इन्वायरमेंट को देखें। इन्वायरमेंट है क्या, हमारे लाइफ से इसका क्या रिलेशन है, हमारे लाइफ पे इसका इम्पैक्ट कितना है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट है क्या, व्हाट इज इन्वायरमेंट, भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो कहते हैं इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड यू। सराउंड यू का सेंस आर आल्सो इंक्लूडिंग विद यू, मैं भी हूं। तो कहते हैं कि everything that surround you and affect your life known as environment। कि वो सारी चीजें, अब everything का सेंस क्या हो जाता है, everything का सोचोगे यस आपका फैमिली बिल्कुल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, प्लांट्स पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, लैंड, एयर, वाटर, आपका नेबरहुड, आपके फैमिली मेंबर्स, आपका रिलीजन, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, इवन कुछ और हम सिस्टम में लेते हैं जैसे आप पॉलिटिकल सिस्टम ले लो, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एजुकेशन सिस्टम ले लो, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सो एवरीथिंग, सारी चीजें, आप स्कूल आते हो यस इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, आपके फ्रेंड्स हैं इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, आप जो है प्लेग्राउंड में जाते हो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, टेबल, चेयर, जो कुछ भी आप देख सकते हो, अपने घर में भी आज बैठे हो कि फैन देखो, कूलर देखो, एसी देखो, टीवी देखो, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इसको हम एक और डेफिनेशन से क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि और भी क्या है इन्वायरमेंट। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, यू मस्ट बी मेमोराइज इट कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। सो एवरीथिंग दैट सराउंड यू, जो हमको सराउंड किया है, एंड अफेक्ट आवर लाइफ, हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, वो सभी इन्वायरमेंट है। अब कहोगे बिल्कुल अफेक्ट करता है, नहीं करता है, एजुकेशन सिस्टम से अफेक्ट। अभी हम लोग मोबाइल फोन पे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। टेलीविजन है, कोई भी चीज देख लो, आपका प्लेग्राउंड है, आपके फैमिली मेंबर है, आपके फ्रेंड्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कुछ भी है सभी कुछ आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट है। एक और हम डिफरेंसेस को क्लियर करते हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर। The place, people, things and nature that surround any living organisms। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्राणी, जीवित, लिविंग, किसी भी वी आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम एक ऑर्गेनिज्म हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड किया है, क्या क्या, प्लेस हो, पीपल हो, थिंग्स हो या फिर नेचर हो, इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन आपके पास है। अब इन्वायरमेंट को थोड़ा सा और ब्रॉडली और पार्ट से देख सकते हैं। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड से इन्वायरमेंट बना हुआ है। फ्रेंच वर्ड कौन सा, इन्वायरनर। इन्वायरनर जो फ्रेंच वर्ड है, इट्स मीनिंग इज आवर नेबरहुड, हमारे पास पड़ोस। तो आपके पास पड़ोस में बहुत सारी चीजें हैं, ये सभी के सभी क्या है, इन्वायरमेंट। सो एनी डाउट, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, फिर रिपीट कर लो, बहुत सारा कर सकते हो। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड यू एंड अफेक्ट योर लाइफ। या हम कह सकते हैं द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड यू नोन एज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो हमारे फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट से बना है, इसकी जो मीनिंग कह सकते हो, वे नेबरहुड कह सकते हो, कि हमारे जो भी आस पास पड़ोस में जो भी चीजें हैं ये सभी
हमारे इन्वायरमेंट है। इस आसपास में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपकी फैमिली आ जाती है, फ्रेंड आ जाते हैं, आपका स्कूल आ जाता है, आपका प्लेग्राउंड आ जाती है, आपकी टीवी सेट आ जाती है, फैन आ जाता है, एसी आ जाती है, कूलर आ जाती है, जो कुछ भी आप देख सकते हो सभी कुछ हमारा इन्वायरमेंट है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी किस किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट किन किन पार्ट्स से, किस किस कंपोनेंट से बना है। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखें, एक्चुअली हम इसे 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एंड सेकंड वन इज द थर्ड, जो हम कह सकते हैं ये जो इन्वायरमेंट है इसके कंपोनेंट्स की तरीके से ले लेते हैं। द नंबर 1 इज द नेचुरल इन्वायरमेंट। सेकंड वन इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट। थर्ड वन इज द मैन-मेड। मैन-मेड इन्वायरमेंट ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा, मॉडर्न पार्ट है ये, अभी हम इसको भी डिस्कस करें। इन तीनों कंपोनेंट को हम वन बाय वन देखें कि कौन कौन से इन्वायरमेंट में क्या क्या पार्ट्स कंप्राइज होती है, कंसिस्ट क्या कौन से पार्ट। नेचुरल, नो डाउट नेचुरल गॉड गिफ्टेड है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एवरीथिंग दैट सराउंड यू एंड अफेक्ट यू दैट इज नोन एज द इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट ये है, इसमें बहुत सारी चीजें कंप्राइज है। क्या क्या कंसिस्ट है? नंबर 1 नेचुरल में कह सकते हो जो गॉड गिफ्टेड है, तो आप कह सकते हो लैंड, नो डाउट गॉड गिफ्टेड है। नेक्स्ट वन इज द वाटर, गॉड गिफ्टेड है। बहुत सारे हम नेचुरल देख सकते हैं। माउंटेन्स, क्योंकि एक्चुअली हम माउंटेन्स आपको इसलिए नहीं एग्जांपल में ले रहे हैं क्योंकि हम जब बिजनेस में पढ़ेंगे तो एक लैंड में ही हम डिस्कस कर लेंगे माउंटेन, क्योंकि डिफरेंट लैंड फॉर्म में पढ़ेंगे तो माउंटेन है, प्लेटू है, वैली है, तो ये सभी के सभी नेचुरल चीजें हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है लैंड है, वाटर है, और मेजर एक पार्ट ऑफ देख लिया जाए तो एयर है, ये आपको नेचुरल इन्वायरमेंट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या क्या है आपके पास? ह्यूमन इन्वायरमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल also is a major part of your environment of seven major part. So number 1 is the individual, second one your family, number 3 your community, that is the human, or we accept your friends. It is a part of human environment. Next one is the religion. मैंने आपको बताया पॉलिटिकल सिस्टम, नेक्स्ट मैंने आपको बताया एजुकेशन सिस्टम, it is the part of human environment. So हम कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एक बार और डिस्कस कर लें। मैंने 2 डिस्कस किया हुआ। नंबर 1 इज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल विच ऑफ गॉड गिफ्टेड, जो गॉड ने बनाया है, कोई इसमें इंटरफेयर ह्यूमन बीइंग्स का नहीं है। हाँ, उस सोर्सेस का हम यूटिलाइज करते हैं, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन उसमें इंटरेक्शन हमारा बहुत ज्यादा नहीं है। सो नेचुरल इन्वायरमेंट में देखते हैं मेजर जो है लैंड है, वाटर है और एयर है। सेकंड देखिए आपने ह्यूमन इन्वायरमेंट एक मेजर पार्ट है, आप एक सेल इन्वायरमेंट के मेजर पार्ट हो, उसमें आप इंडिविजुअल हो गए, आपकी फैमिली होगी, आपकी कम्युनिटी होगी, आपकी सोसाइटी होगी, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपका रिलीजन हो गया, एजुकेशनल सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ये सभी के सभी ह्यूमन इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। तो इन्वायरमेंट का 3 कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड मैन-मेड इन्वायरमेंट।
थर्ड हम मैन-मेड की कर लेते हैं। तो मैंने अभी यहाँ कहा था कि मैनिपुलेट करना या ह्यूमन अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने एडवांटेज के लिए कुछ नए जो है क्रिएट करता है, उन सोर्सेस का यूज करके अपने एडवांटेज के लिए कुछ नई चीजें बनाता है। ये सभी हमारे पास जो है मैन द्वारा बनाया गया इनोवेट। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैन-मेड में हम देख लेते हैं, रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, मोनूमेंट्स हो गया, आपके स्कूल्स हो गए, इवेंट आप अपने पैसे कर सकते हैं, अपने कन्वेंस के लिए, अपने एडवांटेज के लिए, अपने तो आप मोटर बाइक हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सभी के सभी हमारे पार्ट बनाएंगे मैन-मेड इन्वायरमेंट। तो हम फिर देख रहे हैं कि अब कंपोनेंट्स देख रहे हैं इन्वायरमेंट के। तो तीन कंपोनेंट्स को डिस्कस किए, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन कंपोनेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज द मैन-मेड। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैं इसको अगर आप नोट नहीं कर पाए वीडियो को पॉज कीजिए, ये सारी चीजें अपने नोटबुक में जैसे लिखिए, उसको रिवाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए। अगर डाउट होता है क्वेश्चन पूछिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, आप कोशिश करें, क्वेरी करें। क्लियर? तो नाउ वी आर गोइंग टू रन इट। सो हम डिस्कस कर रहे थे ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। थोड़ा सा हम लिटिल बिट इसको ब्रॉड करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया है कि जो क्रिएटेड बाय आवर नेचर, जो नेचर ने भी किया हुआ है। तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। Dear student, एक फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट आल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। नंबर 1 बायोटिक, जो आप क्या बायोटिक कंपोनेंट्स कर सकते हो, एंड नेक्स्ट वन इज द एबायोटिक। दो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक को हम एक और वर्ड दे सकते हैं, बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स, एंड एबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स। फिर आप थोड़ा बैक में जाए, मैंने आपको क्या बताया था एनवायरनमेंट डेफिनेशन हम लोग जब सीखे थे एवरीथिंग दैट्स अराउंड एंड अफेक्ट, जो कुछ भी है हमारे आसपास पड़ोस में, मैंने मीनिंग बताया आवर नेबरहुड। सो जो कुछ भी है सभी एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं। अब इन्हीं में हम कंपोनेंट्स अलग अलग और उनको हम क्लासिफाई करके वन बाय वन इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट में डिस्कस कर रहे हैं। सो नेचुरल एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, द फर्स्ट वन इज द बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स। सो आई मस्ट मैं बिलीव करता हूँ कि यू मस्ट बी क्लासिफाई नेचुरल थिंग इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई हैव फेथ ऑन यू, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको डिस्कस कर सकते हो कि हाँ सर ये हमारा लिविंग है और ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है। फिर भी हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स याद रखिए नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने क्रिएट करके दिया है।
तो लिविंग थिंग्स यानी दैट मींस बायोटिक कंपोनेंट में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? बहुत सारा कर सकते हैं। एक आप कर सकते हो एनिमल्स, सेकंड कर सकते हो प्लांट्स, नेक्स्ट कर सकते हो बहुत सारा कर सकते हो बर्ड्स। लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग थिंग ऐसा है ओके, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है ना लिविंग थिंग्स की। एंड फैक्ट नेक्स्ट वन हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स एक लिविंग थिंग्स से, लिविंग थिंग्स में हम दो किंगडम पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हम डिस्कस करते हैं एनिमल में ह्यूमन बीइंग आल्सो एंड बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। सो दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। द सेकंड वन इज योर एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। इसमें हम देख सकते हैं लैंड, नॉन लिविंग थिंग्स है क्या है, वाटर, अनदर पार्ट है एयर, बहुत सारा कह सकते हो माउंटेन्स है, और कह सकते हो रिवर्स है। ये सभी कह सकते हैं हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स है जो नेचुरल है। तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट टुगेदर कंबाइन एंड मेक आवर natural environment. So we are components of environment में हम जो तीन डिस्कस किए थे। नंबर वन इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को हम और दो ब्रॉड कैटेगरी में डिस्कस किए हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट, एक और टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूं और वो कंपोनेंट्स हमारा है डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। डोमेन्स का सेंस क्या है? रीजन, एरिया, एड्रेस, क्षेत्र, जो भी कह सकते हो। तो एनवायरनमेंट के रीजंस क्या हैं, उनका डोमेन क्या है, इसको हम डिस्कस करें। बट बिफोर आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर वी नीड टू रब दिस वन। सो आई होप यू विल राइट ऑल ऑफ दिस इन योर नोटबुक। ओके, इफ यू आर not write even anytime you pause the video, look the video and write, but it is must be, it must, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि you must be write it on your notebook. Okay, so our next topic is domains of the environment. Domains of the environment. Domains of the environment. Okay, actually domains of the environment अगर हम डिस्कस करें इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। द नंबर वन एज द लिथोस्फीयर, नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोस्फीयर, the third one is the atmosphere, and the next one is the biosphere. देखो बहुत इजी है, ये डोमेन्स है, ये उनके रीजंस हैं जहां पे एनवायरनमेंट है। कौन कौन हम डिस्कस किए? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। All these 4 domains of our environment, ये 4 domains हमारे हैं। अब ये लिथोस्फीयर
क्या है लिथोस्फीयर? सो हम कह सकते हो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। जो अपर लेयर है या कह सकते हो अपर लेयर ऑफ अर्थ वेयर वी लिव, या कह सकते हो हार्ड क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ, हमारे अर्थ में जो अर्थ सरफेस है ये सभी हमारा लिथोस्फीयर है। अभी हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली आप क्लास 6 में भी ये लिथोडोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ के आए हो, जिसमें आपने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर ये सारी चीजें डिस्कस की है। बट हम यहाँ वापस इसको डिस्कस करेंगे हाइड्रो। एक्चुअली हाइड्रो मीन्स वाटर, या ये कह सकते हो एरिया ऑफ वाटर। एरिया ऑफ वाटर, जब भी हाइड्रो वर्ड आए, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रोस्फीयर है, जहां भी हाइड्रो है, इट मींस वाटर। सो एरिया ऑफ वाटर इट इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। ये इसका सेकंड डोमेन हो जाता है। थर्ड देखिए एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? सो आप ये कह सकते हो गैसियस लेयर, जो गैसियस लेयर है दैट सराउंड अस। जो गैसियस लेयर है, जहां पे एक गैसेस है, जहां डिफरेंट गैसेस है जो एयर को फॉर्म करते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस नोन एज द एयर। रिफ्रिजरेशन भी जानते हो, बहुत सारा ऑक्सीजन है जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, बहुत सारी गैसेस है इससे आपको मिलेंगे। सो गैसेस स्टेटेड जो हमें सराउंड किया हुआ है दैट इज द एटमॉस्फेयर। अब ये तीनों चीजें जानते हो, देखो अब ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन लाइफ कहां पॉसिबल होगी? एनवायरमेंट वहां है ना कि जहां हम अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइफ वहां होगी जहां पे फेवरेबल आप एनवायरमेंट कह सकते हो, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो। सो ये बायोस्फीयर है क्या? आपने तीन पढ़ा है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इन्हीं तीनों के कंबाइन कर दिया जाए नोन एज द बायोस्फीयर। या फिर हम और देखें इसको, सो वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम इसको और रद्द कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को आप फाइंड कर सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर। लैंड कहां से आ गया? लिथोस्फीयर। वाटर कहां से आया? हाइड्रोस्फीयर। एंड एयर, ये जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर विच सपोर्ट द लाइफ। क्या जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ये हम कह सकते हैं बायोस्फीयर। देखो हमारे सारे अर्थ को, पूरे अर्थ को डिफरेंट पार्ट में देखिए तो सारे रीजन पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसे रीजन जहां पे लाइफ सपोर्ट है नोन एज द बायोस्फीयर। डियर स्टूडेंट, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, बट आई होप इट विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड आई होप you will understand it well, and if you have any problem without any hesitation ask me anywhere anytime. Till then